does it mean? How do we calculate this method? Let's begin. Yes, how the goodwill is to be calculated under this method. Let's see. That is equal to super profit. I will be calling it SP every time, right? So how the goodwill is to be calculated under this method, let's see. SP is to be multiplied with number of years of purchase of goodwill. This number of years of purchase of goodwill every time he gives you in the question, right? हर बार वो आपको question में given होगा. That is what number of years of purchase of goodwill. So this is the formula of goodwill. Now the question arises how super profit is to be calculated, which is the difference of actual profit and normal profit, right? Where are the latecomers? Super profit is equal to actual average profit, or I will be calling it actual profit minus normal profit. How the normal profit is being calculated, that we are going to discuss. Okay? Yes, how the normal profit is being calculated. And yesterday we have discussed what is the meaning of normal profit. Normal profit का क्या meaning है? Normal profit is equal to excess of actual profit over average profit. What you earn in excess in comparison to the other firms. अब अदर फर्म्स के कंपैरिजन में आप कितना ज्यादा अर्न करते हैं, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, आप जैसी बाकी फर्म्स मार्केट में कितना प्रॉफिट अर्न करती हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. अगर नहीं गिवन होगी तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इसके. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR, रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न विल आल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन. रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है. Capital employed into ROR, right? Now the question arises, अगर capital employed given है, for example, 60 lakh is the capital employed and that is given in the question, and he says 60 lakh लगा के आप जैसी बाकी firms market में 10% क्या करती हैं, earn करती हैं. अगर वो 10% earn करती हैं तो 60 lakh का 10% means normal profit उनका 6 lakh, right? 6 lakh is the normal profit. अब आप जैसी बाकी फर्म्स मार्केट में कितना अर्न कर रही हैं, 6 लाख. फॉर एग्जांपल यू आर अर्निंग 8 लाख, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट. 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर दीजिए, दैट्स व्हाई यू आर एट द एडवांटेजेस पोजीशन व्हिच वी कॉल 2 लाख. 2 लाख आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा. अब कौन सा प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट, व्हिच यू अर्न इन एक्सेस ऑफ अदर फर्म. दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में आप कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, that is what we call super profit, right? Super profit निकाल लेंगे क्वेश्चन में और उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. बट I just wanted to discuss with you, if the capital employed is not being given in the question, then how the capital employed is being calculated. Let's see. दो formulas हैं, one is from liability approach, another is from asset approach. So it depends upon you, आप क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, और it will depend upon the contents given in the statement. स्टेटमेंट में जैसे कंटेंट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड कि मैं लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला लगाऊं कि एसेट अप्रोच का फॉर्मूला लगाऊं, राइट?
So let's see liability approach. ये सारा कुछ आपकी बुक में है. I will just, after completing it, I will just be asking you to tick that particular formulas in your book. Liabilities approach. As per this approach, capital, what is the meaning of capital employed? बिजनेस में कितनी टोटल कैपिटल लगी? So liability approach में पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व ऐड करने, राइट? रिजर्व्स ऐड करने हैं. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व. और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व ही आमतौर पे रहता है. इन दोनों के टोटल में से कुछ चीजें माइनस करनी है. माइनस गुडविल. देखो भाई, गुडविल हम निकाल रहे हैं और गुडविल ही अगर क्वेश्चन में गिवन है तो दैट गुडविल you will be deducting. If it is given in the question, that goodwill you will be deducting. Goodwill माइनस करनी है इन दोनों के टोटल में से. माइनस fictitious assets. Fictitious assets are those assets which don't have any market value. अगर क्वेश्चन में गिवन है और उसके दो ही एग्जांपल्स है पूरी पार्टनरशिप में. One is deferred revenue expenditure and another is advertisement suspense. If these two assets are being appearing, we will be calling it fictitious asset and we will just be deducting it for the calculation of your capital employed, right? Then what else is to be deducted? Non-trade investment. पहले इसका मीनिंग समझिए. क्वेश्चन में अगर अकेला वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है, he has not differentiated क्योंकि इन्वेस्टमेंट is of two types as per your partnership. One is trade investment and other is what? Non-trade investment, right? So trade investments are those investments which you invest in some other firm in order to just expand your business. अपने business को expand करने के लिए, अपने trade को expand करने के लिए आपने किसी दूसरे firm में क्या किया है? Invest किया है. किसी दूसरे business में क्या किया है? Invest किया है. So that investment is trade investment. That is to be taken as a general asset. उसे जनरल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे. लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? ये पैसा आपने कहीं पे बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, आपका अपना ही पैसा है, लेकिन वो आपने साइड पे रखा है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है, जो भी उससे रिटर्न आएगा आप उसको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या करोगे? यूज करोगे. If nothing is mentioned about the nature of the investment, you will always be treating that investment as non-trade investment. So this was your liability approach. Now on this side I am writing asset approach. एसेट अप्रोच में बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना, A माइनस L इज इक्वल टू C हुआ करता था. ठीक है, तो यहाँ पे C का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, मींस सारे एसेट्स ले लीजिए. ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स लेने हैं, लेकिन किनको छोड़ के? एक्सेप्ट गुडविल. यहाँ पे भी छोड़नी है. फिक्टिशियस एसेट छोड़ने हैं क्योंकि उनकी कभी वैल्यू ही नहीं होती. एंड व्हाट एल्स यू विल लीव? That is what non-trade investment. Non-trade investment आपने अपने ही बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्ट किया है, राइट? This is what non-trade investment. अब ये तो इन्वेस्टमेंट छोड़ी, फिक्टिशियस एसेट छोड़ा, गुडविल छोड़ी और एसेट का टोटल आया. अब ये सारे टोटल में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी है. आउटसाइड लायबिलिटीज क्या हो सकते हैं? आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बीपी हो सकता है. दैट ऑल यू विल लीव. तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एसेट अप्रोच A माइनस L इज इक्वल टू C. लेकिन एसेट लेते हुए आपको ये वाले एसेट छोड़ देने हैं, गुडविल छोड़ देनी है. ऑब्वियस है गुडविल क्यों छोड़नी है? I am making the calculation for goodwill and why I will be taking the goodwill. और अगर बैलेंस शीट में उसने गुडविल लिखी है, इट मींस कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हम लोग नहीं लिखते, राइट? फिक्टिशियस एसेट की अपने आप में मार्केट वैल्यू नहीं रहती कोई, so that also we will leave. And what else we will leave? That is non-trade investment. So this is what your formula of capital employed. Now let me see your book and see the illustrations are related to it. This is super profit method, goodwill valuation.
पेज नंबर 3.13 पे और उससे पहले पेज नंबर 3.12 पे आ जाइए. If somebody asks from you what is the meaning of normal profit, तो पहली लाइन में उसने नॉर्मल प्रॉफिट का ही मीनिंग लिखा है. सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस. लाइक आपके कॉम्पिटिटर ने भी 60 लाख लगाया, आपने भी 60 लाख लगाया, ठीक है. आप अर्न कर रहे हैं 20% मीन 60 लाख लगा के आप 1,20,000 सॉरी 20% मीन 12 लाख अर्न कर रहे हैं, और आप जैसी बाकी फर्म 60 लाख का 10% क्या कर रही हैं, अर्न कर रही हैं. दैट इज व्हाट, आप 20% अर्न कर रहे हैं और आप जैसी बाकी फर्म सिर्फ 10% अर्न कर रही हैं, वो 6 लाख अर्न कर रही हैं. तो कहता सेम कैपिटल लगा के डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. So it depends upon their efforts, it depends upon their clientage, it depends upon the services they are providing to the clients and to their customers. That's why they are earning. All of the firm, they invested the same amount, but they are earning the different amount of profit. So when a similar type of business earns profit as a percentage of the capital employed, it is called normal profit. Means normally हमारे जैसी फर्म्स कितना अर्न करती हैं और हम उनसे कितना ज्यादा अर्न करते हैं, वही हमारा क्या है, एडवांटेजेस पोजीशन है. एंड दैट हैपेंस व्हेन वी अर्न इन एक्सेस ऑफ अदर फर्म्स. वो कब होगा, जब हम बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्या करेंगे, अर्न करेंगे. राइट, चलिए. सो दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन. सेकेंड लाइन में सुपर प्रॉफिट की मैंने कल बता दी थी, एक्सेस ऑफ actual profit over what, normal profit. When you see the top of page number 3.13, you have two approaches. One is liability approach for the calculation of capital employed. Second is what, asset approach for the calculation of capital employed. Then in the box he has given you the meaning of your non-trade investment as well as trade investment. Furtherance का मतलब क्या होता है, to expand, to develop, ठीक है, to grow. तो क्या लिखा है उसने, trade investments are those investments that are made in another enterprise. लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उन शेयर से मिलने वाले डिविडेंड को आप क्या करेंगे, फर्दर अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए. ठीक है, जब आप कोई पैसा बाहर लगाते हैं और फॉर एग्जांपल बैंक में भी जमा करवाया और एफडी से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इज आल्सो योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट. क्यों, क्योंकि आपने उस इंटरेस्ट को फर्दर री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज टोटली रिवर्स ऑफ इट. Are those investments that are made to earn revenue by investing surplus fund. क्योंकि आपके पास फालतू पैसा पड़ा था, आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको इनकम मिल रही है, लेकिन ये पैसा जो इनकम मिलेगी आप अपने बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करोगे. So this is what we call non-trade investment. Example number 1 में capital employed उसने पूछी है. So this type of question he can ask in MCQ. He can give you the data and he can give you the options. For that again you need to calculate capital employed. देखते हैं कैसे निकाली उसने. As he is giving me the balance sheet, it means कि with the help of both the approaches, I can just verify कि आंसर सेम आए. Asset approach से capital employed निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, liability approach से निकालेंगे तो भी आंसर सेम आए. So let's begin. Capital employed. In most of the cases, he gives this capital employed in the question. But in case he is not giving me capital employed, then we have to calculate it, right? Let's see. Capital employed. मैं पहले liability approach से निकालूंगी. Liability approach से क्या फॉर्मूला बताया, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, गुडविल माइनस करनी है, फिक्टिशियस एसेट माइनस करने हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है. राइट, सो आई एम कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम लायबिलिटी अप्रोच. राइट, so as per this it is equal to अमन और भास्कर दो पार्टनर्स हैं, so their capitals are 1 lakh each. 2 lakh कैपिटल आ गई, रिजर्व दे रखा है 90,000. माइनस क्या क्या करना होता है, गुडविल अगर है तो माइनस कर दीजिए, 30 है. अब इन द ब्रैकेट विद इन्वेस्टमेंट ही रोट ट्रेड. So trade investment is meant for the growth of the trade, right? So this we will not exclude, that we will consider. Then we have two types of fictitious asset. One is deferred revenue expenditure, another is deferred revenue expenditure is the main heading, और उसके अंदर उसने उसे बोला है advertisement suspense, that is CANFA. So this is 290. 290 में से 40 minus किया, so your capital employed comes to you, that is 2,50,000, right?
Now same I will be doing with the help of ये मैंने लाइबिलिटी करवाया, अब मैं एसेट साइड से करवाऊंगी एसेट अप्रोच। सारे एसेट्स ले लीजिए, गुडविल छोड़ दीजिए, फिक्टिशियस एसेट छोड़ दीजिए। मैंने पहले सारे एसेट ले लिए, फिर मैं गुडविल बीच में से माइनस कर दूंगी 30, मैं फिक्टिशियस एसेट भी माइनस कर दूंगी 10, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज में माइनस करूंगी, इसमें दो ही हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों को मैंने टोटल किया 1 लाख। 390 में से 40 माइनस किया, 350 में से 1 लाख माइनस किया, so your answer again matches with your earlier approach, that is with liability approach. So if it is possible or if it is given in the question the balance sheet of the partnership firm, then you can verify it. It becomes easy for you to verify कि मैं दोनों साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और it is his discretion, he may ask you to calculate the capital employed from liability approach, from asset approach, in any way he may ask from you in the paper, right? So any doubt till now to anyone you may ask. Capital employed is clear to everyone? Now turn the page of your book. Thereby also he asked to calculate capital employed, but this time he has given in the question non-trade investment. So whenever the investment is non-trade in nature, that is to be deducted. दोनों approaches में हम उसे deduct करते हैं. So once again, we are going to calculate capital employed. Again, he will be giving you the balance sheet in the next example. And balance sheet, once he is giving, it means I have to apply both the approaches, liability side approach and asset side approach. So let's begin with liabilities approach. Capital plus reserves. कैपिटल दोनों की 4 लाख, रिजर्व 180, क्या माइनस करना है, गुडविल माइनस करनी है, दैट इज 60। इन्वेस्टमेंट का के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट दैट इज 20,000, so it comes to me 580 में से 60 माइनस 80 माइनस किया, it comes to me 5 lakh और 1 लाख और माइनस किया, that comes to me 4 lakh. So same you will be doing in case of your asset approach, A minus L, ठीक है, और सारे एसेट्स लेने हैं लेकिन गुडविल को छोड़ के, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, और लास्ट वन वाज योर fictitious asset which he is calling advertisement suspense. So you will find it is matching, दोनों तरफ से आंसर सेम आए. In the next page, on page number 3.15, he is discussing that sometimes in the question he may ask you to calculate average capital employed. So average capital employed is nothing, that is opening capital employed plus closing capital employed divided by 2. And capital employed formula will remain same. मतलब 2 सालों की अगर आपको capital employed दी हुई है तो he may ask you to calculate average capital employed. That is again very simple. 9th illustration पे आ जाइए. Come at 9th illustration, everyone. ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 एग्जांपल्स दी थी, दैट इज फॉर थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ही उसने हमें समझाया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं. अब 9th एग्जांपल देखिए, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टर्म वो यूज करता है मैं भी वही लिखूंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. He is giving me the capital investment in the question. So capital investment in the question is 60,000, right? 60,000 he is giving. Normal rate of return he is giving 10%. So with the help of this capital investment and your rate of interest या rate of return जो आपको दे रखा है, दोनों को अप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको रिटर्न के साथ, you will get normal profit. मेरे को पता सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ही होगा. 60,000 into rate of return, that is 10%, it comes to me 6,000. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. आप कितना अर्न करते हो, तो आप कितना अर्न करते हो वो निकालना पड़ेगा. पहले लास्ट लाइन पढ़ लो.
Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit for the last 3 years. 3 years is the number of years of purchase और average profit भी 3 सालों का ही लेना है student, right? So let's calculate average profit, average actual profit you can call it. तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, 22 और 18 40, 40 और 20 60, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, so you earn on an average 20,000. आप जैसी बाकी फर्म्स कितना अर्न करती हैं? 6,000. So you are at advantageous position which we call super profit. Now super profit is equal to actual profit, that is 20. फॉर्मूला लिख के आना एग्जामिनर को बताने के लिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इट कम्स टू मी 14. अभी आंसर नहीं आया भाई, अब गुडविल निकालेंगे. गुडविल इज इक्वल टू एसपी प्लस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, number of years of purchase of goodwill. So number of years of purchase of goodwill he has given. Super profit we calculated. So my answer as per super profit method comes to me goodwill. साथ में रुपीस का साइन लगाइए, 42,000. So this was the way. In this case, he himself gave me capital employed. But sometimes, in order to make the question complicated, he may give you the information about assets and liabilities. He may firstly ask you to calculate capital employed because capital employed is essential to calculate normal profit, right? अगली वाली illustrations में कुछ ऐसा ही होगा. Come at 10th illustration everyone. 10th illustration पे आ जाइए. Yes, one thing more. Whatever actual profit you are earning, that you have to earn in the normal circumstances. If certain abnormal gains and abnormal losses are being given, या abnormal expenses are being given, then you need to adjust it. कोई abnormal gain है, लॉटरी निकल गई है, हॉर्स रेस विनिंग है, वो आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, अब उसे माइनस कर दो बिकॉज आई वांट नॉर्मल प्रॉफिट. कोई खर्चा डालना था लेकिन आपने नहीं डाला, या कोई abnormal expense आपने डाल दिया, तो abnormal expense के कारण प्रॉफिट डाउन हो गया होगा, अब उसे क्या कर दो? बढ़ा दो. Abnormal expenses will increase your profit, abnormal gains will reduce your profit because we need the profit in the normal circumstances. तो कुछ ऐसा ही है हमारा illustration number 10 में. You will be adjusting the profit beforehand, then you will be calculating its average, and then capital employed you have to search in the equation. Capital employed is to be multiplied with the rate of return in order to calculate your normal profit, right? So let's begin. I have two partners in that illustration. Example number 10. ये illustration करने के बाद फिर back exercise question देखते हैं. Illustration number 10, right? See illustration number 10. So I have two partners in that question, Alok and Akash. Are the partners in Messrs Megha Enterprises. They admit Ashish as a partner. एक नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है, कोई बात नहीं. उसकी एडमिशन पे हमने गुडविल की वैल्यू करनी है 3 years purchase of super profit which they decided to take average of last 5 years. एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का लेना है. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल 3 years लेनी है. हमें 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं. मैं ऊपर लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया कोई एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल एक्सपेंस दे रखे हैं. सो दिस इज द सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. दिस इज प्रॉफिट गिवन एंड देन यू विल बी एडजस्टिंग इट, प्लस और माइनस करेंगे. So he is talking about 31st March 2017, then 31st March 2018, then 19, then 20, and then 21. So given profit, this is years, table बनाएंगे, right? So given profit is 2 lakh. $170, right? 210, 230, 250. Done.
नाउ व्हाट ही इज गिविंग 2 लाख प्रॉफिट, पहले साल के प्रॉफिट के साथ ही इज राइटिंग अ वर्जिंग। इस समय 25,000 गेन है, हमने अपने पुराने फिक्स एसेट बेचे थे। जो 25,000 गेन है दैट इज नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर, वो कभी कभार होगा। इस 2 लाख के प्रॉफिट में वो 25,000 है। अब मैं माइनस कर दूंगी, अकाउंट्स में माइनस का साइन हम नहीं डालते, हम उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। दिस इज एडजस्टमेंट, एडीजे ऊपर एडजस्टमेंट लिख दीजिए। देन 170 प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस है। कितना एबनॉर्मल लॉस है? जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, उस एबनॉर्मल लॉस ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब ऐड और किसी के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, राइट। तो इसमें से 25 माइनस किया, इधर लिखिए एडजस्टेड प्रॉफिट। 25 माइनस किया, इट कम्स टू मी 175। इधर 50 ऐड किया 220, बाकी प्रॉफिट एज इट इज रहे। दिस इज 250। See the total from your book. When we get the total, it comes to me 10,85,000. Average profit निकालिए। Total profit, total adjusted profit divided by number of years, that is 5. 10,85,000 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है 2,15,000 और 17, it will be 17, 17,585 है ना। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ द नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड। कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, what is the normal rate of return given in the question? The normal rate of return he is giving you in the question, that is 10%, right? It comes to me 50, 1,50,000, sorry, it is 15 lakh by, so it will be 1,50,000, right? आप जैसी बाकी फर्म्स 1.5 लाख अर्न करती हैं and you are earning 2,17,000. Now super profit is equal to AP minus NP. What is the meaning of AP? Actual average profit which you earn. आप जैसी बाकी फर्म्स जो अर्न करती हैं, that we call normal profit, right? So it is 270 minus 1,50,000. So you are at advantageous position and the difference comes to me 67,000. 67,000. अभी आंसर कहाँ आया हमारा गुडविल का? अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट माइनस इनटू number of years of purchase of goodwill. So goodwill is equal to SP into number of years, उसने beginning में ही दे दिया था हमें, पूरा लिखोगे number of years of purchase of goodwill, right? So SP we calculated 67,000. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इज 3, मल्टीप्लाई करिए 0 0 0 21 2 18 और 2 20। चेक करो आंसर, 2,01,000 इज द राइट आंसर। So this is the value of goodwill. Don't forget to use the unit, that is monetary unit. रुपीस का साइन जरूर लगा के आएंगे। So let's see the back exercise question. Come at the back exercise question. सुपर प्रॉफिट का ही करते हैं। हाँ, 22nd क्वेश्चन देखना, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, वो निकालने को बोलो। चलो वो मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आ सकता है ना ऐसे एमसीक्यू में। 22nd क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज, सी दैट। डन, लेट्स सी। एवरेज प्रॉफिट खुद ही दे रखा है। आमतौर पे एवरेज प्रॉफिट हम निकाला करते थे, तो पहली बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट उसने खुद दे रखा है। फॉर लास्ट फ्यू इयर्स हमें नंबर ऑफ इयर्स दिए ही नहीं, चलो हमें जरूरत भी नहीं है। 2 लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। गुडविल खुद दे रखी है और कहता गुडविल कैसे निकाली है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है
4 years purchase of goodwill. सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो 4 years ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, तो गुडविल का आंसर आपको दे रखा है स्टूडेंट 2,50,000. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे. 2 से डिवाइड करती तो 125 आता, 4 से डिवाइड किया तो 62,500 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया. इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, मार्क इट एज 1, राइट. फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म. अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले बताओ. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, एक्चुअल मतलब एवरेज, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट वी हैव 62,500, एवरेज प्रॉफिट वी हैव 2 लाख. ये 2 लाख इधर ले जाओ, माइनस का साइन कट जाएगा क्योंकि ग्रेटर आइटम के साथ माइनस आएगा. 60 माइनस करती तो 140 होता, 137,500. So normal profit we calculated 1,37,500. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ. वी नो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी. अब वी नो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. So we calculated the normal profit 1,37,500. कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को निकालना है. 10% दे रखा है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यस इट इज 10%. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 zeros बढ़ जाएंगी, 10 से डिवाइड होगा. दिस विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड. चेक फ्रॉम योर बुक. So we arrived at the answer, मतलब reverse order we followed. 13,75,000. Our answer is also coming same. So missing value question he can also put in the paper. You have to prepare yourself in any way. ये अगर आपको फॉर्मूला ना आता होता, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप्स ना आते होते, you will not be in a position to solve it. So this was 22. 21st देखो, काम है 21st. 21st क्वेश्चन पे आइए, रीड इट. सेकेंड पीरियड इज ऑफ बिजनेस स्टडीज भाई, ठीक है. सो लॉग इन आफ्टर 5 minutes and when this period comes to an end. 21st पे आइए. ऑन 1st April मीन्स बिगिनिंग में हमारे पास एसेट्स थे 75,000 इंक्लूडिंग कैश. कैश तो हम लेते हैं 75,000. क्रेडिटर्स कितने थे 5,000. एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला लग सकता है. 75,000 माइनस 5,000, 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी. नीचे आंसर में भी दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्म के पास रिजर्व था 10,000. वाइल द पार्टनर्स कैपिटल शोज, तो लाइबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे तो भी 70,000 आ रही है कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर एसेट अप्रोच से निकाल रहे हैं तो भी 70,000 आ रही है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालो. नॉर्मल प्रॉफिट किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. दैट कम्स टू मी 14,000, राइट. गुडविल फर्म की खुद कहता मैंने दे रखी है, गुडविल इसने खुद कैलकुलेट करी है. कैसे निकली थी वो, सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज. तो गुडविल ही इज गिविंग मी 24,000. 4 से डिवाइड किया, सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास 6,000. मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ भाई. सुपर प्रॉफिट इज 6,000. आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. वी नो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू 6,000. एपी मेरे को निकालना है, एनपी मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा भाई. एक्चुअल प्रॉफिट विल कम टू अस 20,000. So again it is of missing value. He is not asking from you to calculate goodwill, rather he is giving you the value of goodwill himself and he is asking you to calculate average profit. इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे से पूछा, अब की बार वो मेरे से एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है. यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे आस्क. एनी डाउट टू एनीवन, यू मे आस्क.